number 8, and in this lecture I am going to discuss with you rolling process first. So first of all I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch, and my latest gate rank is AR 192 in gate 2020, and I am also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for gate and engineering services exam, correct? And I have mentored 10,000 plus students across the India, online as well as offline, correct? So once again, welcome to all, and good evening, Siddharth, Prateek. Good evening, good evening. तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज का सेशन. Good evening, Prateek. Not audible. Anyone? Sir, voice is too low. Anyone else? हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या दोस्तों? लेट मी चेक. हेलो. Okay, just wait 2 minutes. Hello. Okay, now am I audible? Anyone? Yogesh, Vishnu, I'm audible now. Hello. Okay, it's very low, no issue. थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं. Hello. I think good. Anyone? Siddharth? Now I am audible. Vishnu, Prateek. Still it is low. Okay, no issue. Hello. Okay, now I think it is okay. Shall I start? Audible? Very good. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोलिंग प्रोसेस. सो लेट्स सी हियर, rolling is nothing but it is a metal forming process in which the metal is compressed between two suitable rolls. You just see here in this figure, these are two rolls, these are two power rolls actually, correct? When the metal is compressed between two power rolls, then its height will be reduces. You just see here, suppose this is original height and this is height after deformation, correct? Then here we can get a reduction in height. Now if you see, this is width W naught and this is width WF. So let's see here, width is remained same. Is it clear? W naught is equal to WF. Width कभी भी दोस्तों change नहीं हो रहा, only here we reduce the height. Now the thing is, if height is reduces, then what will happen? Then due to reduction in height, then the reduction in height, the length will be increases. Yes or no? You just see here, due to compression, the height will be reduces, and because of this reduction in height, the length of the object will be increases. Is it clear? यहाँ पे height reduce होगा, तो along with this reduction in height, the length of the object or a plate is increases like this. Is it clear? तो जो भी height में reduction है, that will be compensated by increase in length. Is it clear? And since here the width is remain constant, here the width is remain constant. अब आप क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि ये width कैसे constant है, along the width deformation कैसे नहीं हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा अरेंजमेंट होता है. Here we have a side guide rolls. Is it clear? At both side,
दोनों ही साइड हमारे पास यहाँ पे साइड गाइड रोल्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी प्रिवेंट द फोर्सफुली वी प्रिवेंट द चेंज इन विड्थ, यस और नो। यहाँ पे हम फोर्सफुली विड्थ को चेंज होने से प्रिवेंट कर देते हैं, यस और नो। दैट्स व्हाई विल इट विल बी कंसीडर एज प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। Is it clear? That's why it is called as plane strain deformation. So याद रखना, in rolling process the width is remain constant, correct, but height will be reduces and along with this length will be increases. Are there any chance of crack development in rolling? Yes, सिद्धार्थ, obviously crack बनने के chances बन सकते हैं, और कब बनेंगे, किस तरीके के क्रैक्स बनेंगे, लेटर ऑन लेक्चर्स में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, करेक्ट है। तो सिंपल सा आई थिंक रोलिंग समझ में आ गया दोस्तों। रोलिंग इज नथिंग बट इट इज ए मेटल फॉरिंग प्रोसेस वेयर द मेटल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू रोटेटिंग पावर रोल्स एंड रिड्यूसिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, दिस वन इज द इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज ए नॉट, and this a naught is nothing but it can be written as w naught times of h naught, and now this one is final area after deformation, and this is wf times of hf, yes or no, is it clear? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी रिड्यूस कर रहे हैं, is it clear? And this cross sectional area is directly represented by reduction in height because width is remain same. तो जो एरिया जो हाइट में रिडक्शन है वही यहाँ पे दोस्तों आपको बताएगा कि एरिया में रिडक्शन क्या हुआ, is it clear? Now let's see here few important points regarding rolling process. So let's see, the rolling is normally performed at hot working condition, is it clear? रोलिंग को जनरली दोस्तों हम हॉट वर्किंग कंडीशन में परफॉर्म करते हैं until unless कि स्पेसिफाई ना किया जाए, करेक्ट है। अदरवाइज आफ्टर hot working is preferable because in hot working we can reduce very much amount of strain, yes or no, बहुत ज्यादा रिडक्शन एक साथ हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हम एक साथ ऑब्टेन कर सकते हैं, इज इट क्लियर? बट आफ्टर हॉट वर्किंग इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म कोल्ड वर्किंग, करेक्ट है। हॉट रोलिंग के बाद ये नेसेसरी है कि कोल्ड रोलिंग परफॉर्म किया जाए फॉर गेटिंग डिजायर्ड एक्यूरेट शेप एंड साइज, यस और नो, इज इट क्लियर? सो मोस्ट प्रेफरेबल हुआ हॉट वर्किंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोलिंग इज अ वेरी मच एंड वेरी ओल्डर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यस और नो। और आपको मैंने कास्टिंग में बताया था कि सबसे पहले कास्टिंग से दोस्तों हमारे पास बनता है इनगॉट, इज इट क्लियर? एंड इट्स साइज इज वेरी वेरी लार्ज, इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट दिस इनगॉट, और ये इनगॉट कैसे मिलेगा? विद हेल्प ऑफ कास्टिंग, करेक्ट है। जब भी हम मेटल को प्यूरिफाई करेंगे इन फर्नेस तो उसको हमें स्टोर करना होगा, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनगॉट, एंड इट्स साइज इज वेरी वेरी लार्ज and it cannot be used for any engineering application directly, yes or no? So that this ingot will be converted into some useful shapes, that is billet, correct, blooms, correct, and slabs, करेक्ट है दोस्तों। तो ऐसे थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम इसे कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस बाय दिस रोलिंग प्रोसेस। और ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी रोलिंग करेंगे फॉर दिस कन्वर्जन? ऑब्वियसली वी कैन यूज हॉट रोलिंग प्रोसेस इन हॉट वर्किंग कंडीशन, इज इट क्लियर? तो याद रखना हॉट वर्किंग में रिडक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा रिडक्शन हम एक सिंगल स्टेज में कर सकते हैं। तो इनगॉट से जब भी बिलेट ब्लूम्स और स्लैब में कन्वर्जन होगा तो सबसे पहले कोई प्रोसेस है तो वो है hot rolling process, is it clear? Next, the metal is taken into rolls by friction. यहाँ पे दोस्तों मेटल को कभी भी हम पुश या पुल नहीं करते, यहाँ पे मेटल रोल्स के बीच में जो एंटर हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, is it clear? Like you just see here, suppose these are two rolls and this is the material which enter into the rolls for the deformation. तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि इस प्लेट का, इस मटेरियल का जो एंट्री हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहां पे? फ्रिक्शन बिटवीन दिस रोल्स एंड मटेरियल इंटरफेस, ये सर रोल्स और ये मटेरियल का जो इंटरफेस होगा इस फ्रिक्शन की वजह से एंटर होता है, इज इट क्लियर? नाउ द परसेंटेज रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ द प्लेट डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द रोल सरफेस, इज इट क्लियर? और इसके लिए दोस्तों हम लोग आगे आने वाले टाइम पे एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि म्यू स्क्वायर इंटू आर इज, यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन मिलेगा म्यू स्क्वायर इंटू आर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच,
करेक्ट है। तो हाइट इन रिडक्शन ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रिक्शन क्या एक्ट हो रहा है इन बिटवीन रोल्स एंड मटेरियल एंड द रेडियस ऑफ द रोल, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, करेक्ट है। एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल वर्किंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन रेट एंड क्लोज कंट्रोल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, कॉमन प्रोडक्ट्स आर फ्लैट शीट्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ द लार्ज लेंथ। इज इट क्लियर? एनीवन? प्रतीक, अभिनव, वॉइस आ रही है क्या? आई एम ऑडिबल? हेलो, एनीवन? हेलो, निखिल, आई एम ऑडिबल? एनीवन? आई एम ऑडिबल? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ टर्मिनोलॉजीज ऑफ रोल्ड प्रोडक्ट। रोलिंग के बाद जो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये बहुत ही जनरल टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग फर्दर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में यूज करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दिस इज इंगॉट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? एंड दिस कास्टिंग प्रोसेस, दिस इंगॉट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ब्लूम्स, slabs and billets by performing first stage reduction, first stage rolling process. Is it clear? स्टिल अभी भी लो है। हेलो, नॉट वॉइस प्रॉब्लम हो ही रहा है। इट्स ओके, नो इशू। हेलो, नाउ आई थिंक इट इज ओके। हेलो, एनीवन? लाउड एंड क्लियर, ओके। थोड़ा सा वॉइस मैं कम कर देता हूँ, मैंने काफी इंक्रीज कर दिया था, अभी मैंने फिर से सेटिंग की है। करेक्ट है? काफी ज्यादा वॉइस होगी, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। Okay, now I think voice is clear. Okay, now प्रतीक, यस यस, वेरी गुड। चलो कंप्लीट मैंने सेटिंग चेंज कर दी, नो इशू। अब वॉइस प्रॉपर क्लियर होगी। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बीच बीच में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो ही जाती है, बट कोई बात नहीं है ना, करेक्ट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये इनगॉट है जो कि आपको कास्टिंग प्रोसेस से बने मिलेगा, और इसे आप डायरेक्टली किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। तो इस कास्टिंग को मुझे पहले यूजफुल शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पे देखो यूजफुल शेप है वो ब्लूम्स है, देन स्लैब है, इज इट क्लियर, देन बिलेट है, इज इट क्लियर। ये थर्ड, और ये कैसे मिलेगा? आफ्टर फर्स्ट स्टेज रिडक्शन। और ये रिडक्शन किस में करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ रोलिंग प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ रोलिंग, एंड स्पेशली वी यूज हॉट रोलिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? हॉट रोलिंग प्रोसेस के थ्रू स्पेशली मैं इसे करने वाला हूं। एंड आफ्टर दैट अगेन दिस ब्लोब्स इज कन्वर्टेड इनटू सम स्ट्रक्चरल शेप्स लाइक दिस, यू कैन सी हियर। आप देखोगे आई शेप का चैनल है, सी शेप का चैनल है, करेक्ट? ऐसे बहुत तरीके के चैनल्स होते हैं, एंड देन दीज चैनल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अगेन रोलिंग प्रोसेस। एंड सिमिलरली यू जस्ट सी हियर रेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय दिस rolling process, yes or no? Correct. And now you can see when we talk about slab, then this slab is converted into plates, sheets, is it clear, and coils, correct. And this billet is further converted into bars and rods, correct. तो ये complete conversion दोस्तों हम rolling process के through करते हैं, and these are the major parts through which can be produced by rolling process. Is it clear?
ओके नाउ यू कैन सी टर्मिनोलॉजीज ऑफ रोल्ड प्रोडक्ट। अब इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। इट इज द फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ स्टील विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस। याद रखना, ब्लूम्स, बिलेट्स एंड स्लैब्स आर सेमी फिनिश प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्राइमरी रोलिंग ऑफ कास्ट इनगॉट्स। नेक्स्ट ब्लूम। अब देखो याद रखना है इसको, ब्लूम्स क्या होता है, व्हेन विड्थ एंड हाइट इज रिमेन सेम। विड्थ और हाइट दोनों ही लगभग क्या हो दोस्तों, सेम हो, लाइक दिस। Is it clear? And this cross section area, suppose you can see here, this is width and this is height, and both are equal, but its cross sectional area, must be greater than 200 millimeter, sorry, centimeter square, 200 centimeter square. Then this is called as blooms. Now if we talk about slab, then you can see here, when width is greater than 2 times of height, then it is looking like this. यहाँ पे देखो, it is looking like this. करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो विड्थ है, इट इज क्लोज टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट। यस आर नो? दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट, and here width is close to 2 times of height. And again, it's if cross sectional area must be greater than 200 centimeter square, then इस तरीके के शेप को दोस्तों हम कह देते हैं, this is called as slab. Now if we talk about billet, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि अगेन हियर वी हैव अ रेक्टेंगल, सॉरी, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज lie on in between 20 to 100 centimeter. Is it clear? This is width and this is height, both are equal. और यहाँ पे जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इट इज लाई ऑन इन बिटवीन 20 to 100 centimeter square. Then this is called as billet. एंड नाउ प्लेट। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, दिस इज वेरी फेमिलियर, और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। करेक्ट है? तो प्लेट कब कहलाएगा, व्हेन इट्स थिकनेस इज ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। व्हेन द थिकनेस इज ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर एंड विड्थ इज लेस देन 600 मिलीमीटर, देन दिस इज कॉल्ड एज प्लेट। करेक्ट? एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सीट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, this is not greater than, here we need less than. When thickness is less than 6 millimeter and width is less than 600 millimeter square, then this is called as seat. Is it clear? तो thickness और seat में यही difference है। thickness 6 मिलीमीटर से ज्यादा होगा thickness, तब प्लेट कहलाएगा, और 6 मिलीमीटर से कम है तो उसे कहेंगे हम seat. Is it clear? Okay, now few characteristics of hot rolling. तो ऑलरेडी हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग हमने डिटेल से स्टडी किया था दोस्तों, और वही सारे डिफरेंसेस हर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए होंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। यू कैन सी हियर, इन केस ऑफ हॉट रोलिंग, इट इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ये ऑलरेडी आपको पता है कि हॉट वर्किंग हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव होती है। द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ द इंगॉट इनटू बिलेट्स एंड ब्लूम्स इज डन बाय हॉट रोलिंग। ये भी यहाँ पे क्लियर है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इनिशियल जो ब्रेकडाउन होता है वो हम हॉट वर्किंग से करेंगे, कोल्ड वर्किंग से। याद रखना, हॉट रोलिंग के थ्रू हम करेंगे, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट, शीट्स, बार, रॉड्स, इट इज करेक्ट। एंड इन हॉट रोलिंग ऑक्साइड्स एंड स्केल फॉर्मेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। करेक्ट? और ये क्यों मेजर प्रॉब्लम है प्रतीक? क्या है, विड्थ 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ, विड्थ मिलीमीटर स्क्वायर कैसे सर? ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है। करेक्ट है प्रतीक? ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है, और ये सारे डेटा मैंने बुक से लिए, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। करेक्ट है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो हम सभी को एज इट इज फॉलो करना होगा। करेक्ट? और नाउ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि हॉट वर्किंग में सबसे बड़ा मेजर इशू क्या होता है, ऑक्साइड्स फॉर्मेशन और स्केल फॉर्मेशन। और आपने कास्टिंग में भी देखा था, मैंने आपको बार बार बताया था कि व्हेनेवर वी हैव हायर वर्किंग टेम्परेचर देन द ऑक्साइड्स विल फॉर्म। यस और नो? तो ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड स्केल, स्केल क्या होता है जनरली दोस्तों, जो मटेरियल है इसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज है, ऑयल है, डस्ट है, डर्ट है, ये सारी चीजें होती हैं, और इसे आप डायरेक्टली हीट करके जब आप कास्ट रोलिंग करोगे तो ये एज ए स्केल फॉर्म करेगा। और ये स्केल क्या होगा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ये टॉप लेयर देख रहे हो, जनरली यहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्म हो ही जाती है। जो कोई भी अगर स्टील है तो उसमें कुछ रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा, तो वो कोरोजन भी एज ए स्केल ट्रीटेड होगा, और वो ऑक्साइड होता है एक्चुअली।
करेक्ट है। तो जैसे आप इसमें रोलिंग करोगे तो ये सारे ऑक्साइड्स स्केल्स में भी पेनिट्रेट हो जाएंगे अंदर इनसाइड द मटेरियल, और या फिर रोलर्स के मार्क्स पैचेस बन जाएंगे। करेक्ट है, तो ये अनडिजायरेबल होते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एक पिकलिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। पिकलिंग प्रोसेस का मतलब है दोस्तों कि इससे सबसे पहले वायर ब्रश से क्लीन करके एसिड वॉश कर देते हैं। करेक्ट है, तो एसिड वॉश कर देने के बाद ये सारे जो ऑक्साइड्स और स्केल फॉर्म में हुए मेटल के ऊपर वो सारे क्लीन हो जाएंगे, एंड नाउ यू कैन परफॉर्म डिफेक्ट फ्री मेटल रोलिंग प्रोसेस। करेक्ट, एंड नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे देखो रोलिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो ग्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा। करेक्ट है, तो देखो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्म ग्रेन्स आपको मिल रहे हैं बिफोर बिफोर deformation, yes or no? And as you start deformation along this direction, then the grains are elongated like this. यहाँ पे देखो ग्रेन, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके के यूनिफॉर्म ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं तो लोड जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेन्स इलोंगेट होने स्टार्ट हो जाती है। yes or no? करेक्ट, और इस तरीके से इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट सिंस दिस प्रोसेस इज परफॉर्म एट ए हॉट वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे हम हॉट रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये प्रोसेस रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर के अबव हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, यू कैन सी हियर। करेक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो आपको ये दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। करेक्ट है, ये सारे जो फॉर्म हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे ओल्ड ग्रेन्स है बट कंप्रेस्ड ग्रेन्स है, इलोंगेटेड ग्रेन्स है, एंड दे आर हैविंग ह्यूज स्ट्रेस, रेसिडुअल स्ट्रेसेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल स्ट्रेसेस, correct, and strain hardening phenomena, the ductility of the material significantly reduces, and therefore we need higher deformation load for further stages. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि ये प्रोसेस हॉट वर्किंग कंडीशन में हो रही है, तो यहाँ पे रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर होने की वजह से ये न्यू क्रिस्टल्स ग्रेन्स फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, एंड जो पुरानी ग्रेन्स है ऑल दोज ग्रेन्स कैन डिस्ट्रॉयड एंड न्यू ग्रेन्स विल फॉर्म लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो ये जो रीजन यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज कंप्लीट रिक्रिस्टलाइज्ड जोन है। यहाँ पे सारे न्यू क्रिस्टल फॉर्म हो चुके हैं, और ये वही रीजन है जहां पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है। करेक्ट है दोस्तों, दिस इज द रीजन at which recrystallization process is going on. Is it clear? And these are the nucleus. ये आप जो मैंने आपको बताया ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियस होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स। इज इट क्लियर? करेक्ट है, तो ये सारी कहानी होती है इन हॉट वर्किंग कंडीशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे अगर किसी कुछ डाउट होता है मुझे फटाफट बता दो। एनीवन, डू यू हैव एनी डाउट? हेलो प्रतीक, राकेश, एनीवन, किसी को कुछ डाउट है क्या? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया, दिस जोन इज अ रिक्रिस्टलाइजेशन जोन। करेक्ट, where new crystal will form and it will grow, yes or no? And this is the region where complete recrystallization process performed, yes or no? करेक्ट, और ये वह रीजन है जहां पे मटेरियल क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ, एंड दीज आर कॉल्ड एज डिफॉर्म्ड elongated grains which are having huge amount of residual stresses, yes or no? यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट की रेसिडुअल स्ट्रेसेस होंगी दोस्तों, but once the complete recrystallization takes place, the whole residual stresses may destroyed and may removed, yes or no? Is it clear? This is the one of the biggest advantage of this hot rolling process. ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ वहां पे सारे रेसिडुअल स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाती है और डक्टिलिटी रिटेन हो जाती है। नाउ यू कैन सी कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग डन बिलो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सीट, इसको हम यूज करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग सीट स्ट्रिप फॉइल्स विथ गुड सरफेस फिनिश एंड क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस। दोस्तों ये इसके फाइनल आउटपुट्स है, ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हम बनाएंगे कोल्ड वर्किंग से। क्या है यहाँ पे सीट देख सकते हो, स्ट्रिप्स, फॉइल्स, इज इट क्लियर? ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड और यहाँ पे याद रखना, वेन एवर वी परफॉर्म कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, देन बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना, द मटेरियल स्ट्रेंथ
मटेरियल की स्ट्रेंथ हमेशा दोस्तों इंक्रीज होगी। तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी स्ट्रेंथ जो रॉ मटेरियल था उससे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। इज इट क्लियर? Now, high speed for high tandem mills with 3 to 5 stands are used for cold rolling of steel, aluminium and copper. अब ये टेंडम रोलिंग क्या होता है दोस्तों, 2 हाई मिल क्या होता है, 3 हाई मिल्स क्या है, तो ये आने वाले स्लाइड्स में मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। करेक्ट। नाउ हाई डिलीवरी स्पीड अप टू 30 मीटर पर सेकेंड कैन बी ऑब्टेन। बहुत फास्ट स्पीड से दोस्तों हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। करेक्ट है। एंड द रोल स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट स्टैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। करेक्ट है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टैंड्स हैं लाइक दिस, जहां पे हम सीट को रिड्यूस करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्पीड सपोज v1 है और यहाँ पे स्पीड vn है आफ्टर एन स्टैंड। करेक्ट है। तो याद रखना vn इज ऑलवेज ग्रेटर देन v1। इनिशियल फर्स्ट स्टेज रोलर से हमेशा फाइनल स्टेज रोलर की वेलोसिटी कम होगी, या फाइनल स्टेज की रोलर की वेलोसिटी इज ऑलवेज हायर देन द इनिशियल स्टेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? और इसका रीजन भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी हियर द अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, जो मैं आपको बताने वाला था 2 हाई 3 हाई 4 हाई मिल्स के बारे में। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, व्हेन वी हैव टू रोलर्स ओनली लाइक दिस, व्हेन वी हैव टू रोलर्स through which we can reduce the height of the material, then this is called as two high rolling mill। और यहाँ पे देखो the upper rolls can rotate in anti clockwise direction। ये सारनो यहाँ पे देखो अपर रोल जो रोटेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोअर रोल्स है दोस्तों, इट विल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज। तो याद रखना दोनों ही रोलर्स की जो डायरेक्शंस होती है दैट विल ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ऐसा नो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट है। कई बार, और स्पेशली अगर आप किसी पीओसी के एग्जाम या एसएससी एग्जाम दोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। करेक्ट है कि अगर यहाँ पे टू रोलर्स हैं तो दोनों रोल्स की वेलोसिटी वेदर इट इज सेम और डिफरेंट और कांट बी से, ऐसे कुछ करके ऑप्शन गिवन रहते हैं। करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना दोनों रोलर की डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है टू हाई रिवर्सिंग रोलिंग मिल। इसका मतलब देखो फर्स्ट जो आपने केस देखा था इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में रिडक्शन पॉसिबल है, ओनली इन दिस डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ रिवर्सिंग रोलिंग यहाँ पे क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में भी रोल कर सकते हो और इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी रोल कर सकते हो। दोनों ही डायरेक्शन में हम मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने सपोज आपके पास ये मटेरियल है और इसमें आपने कुछ हाइट तक, सपोज आपके ने इस हाइट तक आपने रिडक्शन किया और फिर यहीं की आप इसकी हाइट में रिड्यूस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप क्या करोगे, होल लेंथ को रिड्यूस कर लोगे एंड आफ्टर दैट इसको फिर से डायरेक्शन चेंज करके हम इस डायरेक्शन में करके फिर से हाइट में रिडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? करेक्ट। तो दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पे डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, जबकि फर्स्ट केस में ओनली वन डायरेक्शन में ही पॉसिबल था। नेक्स्ट देखो थ्री हाई रोलिंग मिल। करेक्ट है। अब देखो थ्री हाई रोलिंग मिल की नीड कैसे हुई दोस्तों, तो विद द हेल्प ऑफ थ्री रोल्स ओनली टू स्टेज रिडक्शन इज पॉसिबल। यहाँ पे देखो अगर आप टू हाई मिल्स यूज करते हैं तो टू स्टेज रिडक्शन के लिए आपको एटलीस्ट 4 रोल्स की नीड होती, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 3 रोल्स ओनली वी कैन ऑब्टेन टू स्टेज रिडक्शन। पहले आप इस डायरेक्शन में मटेरियल को रिड्यूस करो और सेम मटेरियल को आप यहां से एंटर करा के अगेन रिड्यूस कर सकते हो। ऐसा नो, इज इट क्लियर? करेक्ट। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में सीट एंटर होगा और इस डायरेक्शन से सीट सेकेंड स्टेज में रिडक्शन एग्जिट होगा। ये सानो करेक्ट। तो इसे कहते हैं हम थ्री हाई रोलिंग मिल्स। जब थ्री रोलर्स यूज हो तो थ्री हाई रोलिंग मिल्स कहेंगे हम। अब देखो डायरेक्शन, सबसे पहले देखो आप सेंटर वाले रोल्स को, तो इस रोल्स का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है दोस्तों। तो इसके ठीक नीचे वाला आप देखो तो दिस वन ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अबो वाले को देखे तो ये भी रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट रोल्स है both can rotates in same direction but middle rolls is always rotates in opposite direction। yes or no? अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है मिडिल रोल्स का, तो अपर एंड बॉटम रोल्स का रोटेशन दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा और दोनों ही रोल्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। इज इट क्लियर? ये हो गया थ्री हाई रोलिंग मिल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है फोर हाई रोलिंग मिल्स। करेक्ट। देखो होता क्या है, समटाइम्स व्हेन वी नीड टू रिड्यूस
लिटिल बिट हार्ड मटेरियल, इज इट क्लियर? जब हार्ड मटेरियल का रिडक्शन आपको करना होगा हाइट में, देन यू नीड हायर रोलिंग लोड, इज इट क्लियर? एंड whenever higher rolling load is required, then the roll separation, chances of roll separation is very high. yes or no? करेक्ट है दोस्तों? सपोज अगर हम बात करें कि आपके पास कोई ऐसी सीट है एंड इट्स स्ट्रेंथ इज लिटिल बिट हायर, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस लोड की वजह से क्या होगा कि इसके रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा और वो इन रोलर्स को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टू हाई मिल्स, इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसके दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो रोल्स है, इस रोल के इस डायरेक्शन में रिएक्शन एक्ट होगा और यहीं पे जो सीट आप देख रहे हो लाइक दिस, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा। तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय रोल्स ऑन द सीट। और जबकि ये कौन सा फोर्स है दोस्तों? फोर्स अप्लाइड बाय सीट ऑन द रोल्स। यस आर नो? एक्शन का रिएक्शन है, सपोज दिस इज एक्शन, तो ये क्या आएगा दोस्तों? रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस आर नो? एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द चांसेस ऑफ रोल सेपरेशन टेक्स प्लेस, मतलब ये रोल्स इस डायरेक्शन मूव करेगा, सेपरेट होने की कोशिश करेगा। ऐसा नो? ये कंडीशन कब आती है? व्हेन इधर वी नीड टू रिड्यूस वेरी मच अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन सिंगल पास, या फिर आपके पास जो मटेरियल है दैट विल लिटिल बिट हायर हार्डर, सॉरी यह कह सकते हैं हायर स्ट्रेंथ एंड हायर हार्डनेस वाला मटेरियल है, उसको आप डिफॉर्म कर रहे हो। करेक्ट है? तो दोनों ही केस में ये सिचुएशन बनेगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया 4 हाई मेल्स। तो जो यहाँ पे आप बिगर रोल्स देख रहे हो, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज बैकअप रोल। और दोस्तों जैसे हमने रोल के डायमीटर को कम कर दिया, स्मॉलर साइज के रोलर्स को यूज किया, तो अब यहाँ पे रोल सेपरेटिंग फोर्स जो होगा वो कम लगने वाला है। क्यों कम लगने वाला है? क्योंकि कम यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर होने की वजह से कांटेक्ट एरिया भी कम होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस लेसर रोल सेपरेटिंग फोर्स इंड्यूसेस एंड देयरफॉर वी प्रिवेंट द सेपरेशन। और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे रोल सेपरेशन के लिए कुछ फोर्स एक्ट भी हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस बैकअप रोल्स इट कैन बी एलिमिनेटेड। यस और नो? ये बैकअप रोल्स उसको सपोर्ट करेंगे, रोल सेपरेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। यस और नो? करेक्ट है? तो ये हो गया दोस्तों 4 आई मिल्स। अब नेक्स्ट आता है क्लस्टर मिल। इज इट क्लियर? अगेन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर रोल सेपरेशन फोर्स एक्ट हो रहा है, करेक्ट है, और आप नहीं चाहते कि एनी हाउ यहाँ पे सेपरेशन होने पाए, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रोल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोस्तों, मल्टीपल रोल्स जो इसको सपोर्ट करेगा। करेक्ट है? स्मॉल रोल्स जो एक्चुअल रोल मेटल को डिफॉर्म कर रहा है, उस रोल्स को यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्लस्टर रोल्स वी कैन सपोर्ट इट। यस और नो? सो दैट कंप्लीट रोल सेपरेशन कैन बी प्रिवेंटेड। यस और नो? इज इट क्लियर? जिसे कहते हैं हम क्लस्टर रोलिंग मिल। करेक्ट? नेक्स्ट आता है टेंडम रोलिंग मिल। करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो when we have multi stage reduction in single pass, मतलब एक ही सीट के हाइट को हमें रिड्यूस करना है बहुत ज्यादा हाइट में। सपोज आपको यहाँ पे जो हाइट है, सपोज इट विल बी कंसिडर एज 50 मिलीमीटर, और आप 50 मिलीमीटर की हाइट को रिड्यूस करके 5 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ह्यूज, मतलब 45 mm आपको रिड्यूस करना होगा, और ये इतना अमाउंट का रिडक्शन सिंगल पास में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। करेक्ट है? और आप एक रोल से पहले रिड्यूस करोगे, फिर दूसरे रोल से रिड्यूस करोगे, मल्टीपल बार सेटिंग करोगे, इट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया कि एक ही यहाँ पे देखो एक ही स्टेशन, मैं इसे अगर कह दूं दिस इज स्टेशन 1, एक ही स्टेशन में अगर हम मल्टीपल स्टैंड्स यहाँ पे प्लेस कर दें, तो दोस्तों हर एक स्टैंड में कुछ अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे हाइट में रिडक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ हाइट में रिडक्शन, फिर यहाँ पे रिडक्शन, फिर यहाँ पे रिडक्शन, एंड देन यू कैन गेट फाइनल हाइट। तो मल्टी स्टेज रिडक्शन हो रहा है इन सिंगल पास ऑफ द सीट। यस और नो? सिंगल पास ऑफ द सीट। तो whenever we have arrangement like this, then this types of mill is called as tandem rolling mill. Is it clear? Multi-stage reduction is possible in single pass of the plate. Then it is only possible when we use multiple stands in a series, and this is system is called as tandem mill. Is it clear? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी लेंथ की सीट्स होती है जिसको हमें यहाँ पे डिफॉर्म करना होता है दोस्तों। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हियर वी यूज अनकॉइलर। यहाँ पे जो सीट होगी एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स लाइक दिस। करेक्ट है? कुछ इस तरीके की कॉइल्स के फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अनकॉइल इट। ये सन होती है, यहाँ पे हमने अनकॉइलर लगा दिया जो इसको इस डायरेक्शन में मूव करके अनकॉइल कर रहा है। एंड आफ्टर दैट सिंस इट्स लेंथ इज
इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, तो इससे मैं क्या करूंगा, अब इसको एज इट इज आप पास नहीं कर सकते हो बिकॉज इट टेक्स वेरी ह्यूज स्पेस, ये सामने जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद फिर से हम इसे कॉइल कर देते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में अनकॉइलर लगा होगा, उसके बाद यहाँ पे कॉइलर लगा होगा जिसे हम कहते हैं बाइंड अप रील। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये जो बनने वाला है यहाँ पे रील, इसे कहते हैं बाइंड अप रील, एंड दिस इज कॉइलर जो इसको फिर से कॉइल में कन्वर्ट करने वाला है। इज इट क्लियर? So this whole setup is called as tandem rolling mill. Now tell me if you have any doubt. Anyone? हेलो? किसी को डाउट है यहाँ पे दोस्तों तो मुझे बता दो फटाफट। नेक्स्ट देखो प्लैनेटरी मिल, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इफ यू वांट टू रिड्यूस वेरी हाई, यहाँ पे कह सकते हो इफ दिस हाइट इज वेरी मच हाई एंड सपोज इट इज 10 मिलीमीटर कह देते हैं, दिस हाइट इज 10 मिलीमीटर एंड सपोज इट्स हाइट इज 0.001 मिलीमीटर, करेक्ट है। मतलब आपको इस सीट से डायरेक्टली फॉइल्स में कन्वर्ट करना हो तो कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो सिंगल स्टेज में कर सके, बट विद हेल्प ऑफ दिस प्लैनेटरी मिल्स, यहाँ पे देखो ये जो बैकअप रोल है इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पावर रोल्स, इसी को हम पावर देंगे, करेक्ट है दोस्तों। तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मल्टीपल रोल्स हैं। तो दोस्तों अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे मल्टीपल रोल्स हैं एंड दे कैन रोटेट अबाउट इट्स ओन सेंटर एंड अलोंग विद दे कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू दिस बैकअप रोल, इस बैकअप रोल के साथ साथ भी रोटेट हो रहे हैं और साथ में अपने खुद के सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है दोस्तों, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कि एक सिंगल रोटेशन, इन सिंगल रोटेशन ऑफ बैकअप रोल मल्टीपल मल्टीपल स्टेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे सपोज अगर हम नंबर ऑफ रोल्स की बात करें, दिस इज 1 2 3, अब मैं काउंट कर लेता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पे 16 रोल्स हैं, करेक्ट है दोस्तों, 16 रोल्स हैं। तो एक सिंगल रोटेशन में इस बैकअप रोल के वन सिंगल रोटेशन में 16 टाइम्स रिडक्शन पॉसिबल है, करेक्ट है। 16 टाइम्स यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल है विद सिंगल रोटेशन ऑफ बैकअप रोल, इज इट क्लियर? एक बार बैकअप रोल को मैं रोटेट करूंगा तो 16 बार यहाँ पे सीट में रिडक्शन होगा। और ऑब्वियसली दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिडक्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेज, यस और नो, बहुत ज्यादा अमाउंट का रिडक्शन दोस्तों एक सिंगल स्टेज में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्लैनेटरी मिल, ये सर नो। तो याद रखना है whenever you want to convert huge height into very small thickness or in the form of foils, then it will only possible by planetary mill. Is it clear? करेक्ट है। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों ये प्लैनेटरी मिल का इंपॉर्टेंस क्या है। और याद रखना जो बैकअप रोल्स होता है इसी को हम पावर रोल्स कहते हैं और इसी को हम पावर देंगे, और जो स्मॉल रोल्स लगे हैं यहाँ पे प्लैनेटरी रोल्स जिन्हें कहते हैं, इनको हम पावर नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से रोटेट होंगे, यस और नो, करेक्ट? ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थ्रेड रोलिंग। नाउ यू कैन सी, सपोज सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग ब्लैंक एंड यू नीड टू मेक अ थ्रेड्स, मतलब आपको नट बोल्ट ऐसे बनाना है, करेक्ट है दोस्तों। और नट बोल्ट आपने देखा होगा इट कैन बी प्रोड्यूस इधर बाय मेटल कटिंग, और मेटल कटिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली बना सकते, कास्टिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, बट जो ह्यूज अमाउंट के साइज के होंगे उसको, करेक्ट है, या फिर हम रोलिंग के थ्रू बनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि रोलिंग के थ्रू हम एक थ्रेड्स बना रहे हैं, ऐसा बोल्ट बना, नट बना रहे, नट बोल्ट, करेक्ट है, और एक हम कटिंग के थ्रू बनाएंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन दिस पर्टिकुलर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दिस शेप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल, इट मींस देयर इज नो मेटल कटिंग, यहाँ पे कोई ग्रेन्स कट नहीं रहा है, यूनिफॉर्म ग्रेन्स है, करेक्ट है, यूनिफॉर्म ग्रेन्स हो रहा है पहली बात। दूसरा कोल्ड वर्किंग करोगे तो स्टेन हार्डनिंग फिनोमेना होगा, तो कंटिन्यूस ग्रेन्स, and because of stain hardening phenomena the strength of the finished part will be increases। बट यहीं पे अगर मैं सेम यहीं पे यही सेम थ्रेड्स अगर मैं मेटल कटिंग के थ्रू बनाऊंगा तो दोस्तों वहां पे मेटल कट करने की वजह से जो, यस फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं गियर थ्रेड्स के बारे में बात करता हूँ, गियर्स के बारे में बात कर दो दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। सपोज दिस इज योर ब्लैंक, करेक्ट। अब इस ब्लैंक से दोस्तों मुझे क्या करना है, हियर वी नीड टू कट अ शेप लाइक दिस, एक मुझे यहाँ पे थ्रेड्स कट करना है, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट।
तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली कट कर दो, यस आर नो, लाइक दिस, करेक्ट। यहाँ पे इसके कट करके बना दो। फिर नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे देखो इस जगह पे आप कट कर दो सेम, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कटिंग, अगर मैं यहाँ पे ग्रेन्स बनाऊं दोस्तों, फाइबर्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके के दिखेगा, यू कैन सी डिसकंटिन्यूअस फाइबर लाइक दिस, यस आर नो, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे फाइबर था ये ऑलरेडी कट हो चुका है, यस आर नो, एंड सिमिलरली यहाँ पे कट हो चुका है बिकॉज ऑफ कटिंग। अब नाउ इफ दिस सेम टूथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोलिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, मेटल को कंप्रेस करेंगे हम, ना कि कटिंग करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे फिर से देखो आप वंस अगेन, you can get here threads like this, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इन ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे लाइक दिस, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग ना होके यहाँ पे कंप्रेस करें, तो ये आप देख सकते हो ना, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस ग्रेन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉन्टिन्यूस ग्रेन्स, इज इट क्लियर, continuous grains यहाँ पे देख रहे हो, because of continuous grains its strength is higher and there is no stress concentration, and here we can get discontinuous grains, and because of this discontinuous grains stress concentration may appear, and because of this स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होगा दोस्तों, इसमें कम स्ट्रेस अप्लाई करने पे ज्यादा स्ट्रेस फील होगा और ये इसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इट मींस इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। तो दोस्तों जब भी आप रोलिंग के थ्रू, मेटल फॉर्मिंग के थ्रू थ्रेड्स या गियर्स बनाओगे तो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड यू कैन सी हियर दिस इज थ्रेड रोलिंग प्रोसेस इन विच वी हैव फिक्स्ड डाई वेयर वी हैव इंप्रेशन, जो आपको बनाना है सेम मॉडल के इंप्रेशन यहाँ पे होंगे दोस्तों, एंड दिस इज मूवेबल डाई एंड इट ऑल्सो हैविंग सेम काइंड ऑफ इंप्रेशन लाइक दिस। नाउ व्हेन वी रोल दिस स्टार्टिंग ब्लैंक बिटवीन द फिक्स्ड एंड मूविंग डाई, इनके बीच में रख के आप इसको रेसिप्रोकेट करो लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो इंप्रेशन है डाइस का, वो सेम इंप्रेशन इस स्टार्टिंग ब्लैंक में बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट अ फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इस होल प्रोसेस को क्या देते हैं हम, थ्रेड रोलिंग प्रोसेस, करेक्ट। एंड नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज रिंग रोलिंग, यू कैन सी हियर व्हेन सपोज आपके पास एक ऐसा एक सर्कुलर ब्लैंक है, एक डिस्क है, ये सॉलिड डिस्क, इज इट क्लियर लाइक दिस, करेक्ट, एक सॉलिड डिस्क है एंड यू नीड टू मेक अ रिंग, इसे रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट यू जस्ट मेक अ होल हियर, और कैसे होल करेंगे, पियर्सिंग ऑपरेशन के थ्रू, यहाँ पे एक पंच से इसको कंप्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक होल बन जाएगा, एंड नाउ यू जस्ट प्लेस दिस आइडलर रोल्स, इसे हम कहते हैं आइडलर रोल, एंड दिस इज मेन रोल, और यहाँ पे देखो ये दो कॉनिकल रोल्स लगे होते हैं जिसे कहते हैं हम एजिंग रोल्स। तो अब दोस्तों करना है क्या आपको, सिंपली यू जस्ट रोटेट दिस वर्क पीस, इस वर्कपीस को सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे हम, करेक्ट, एंड अलोंग विद दिस रोटेशन यहाँ पे देखो इन आइडल रोल्स की हेल्प से इसे हम कंप्रेस करेंगे दोस्तों, करेक्ट है, ये दोनों रोल्स क्या करेंगे, इसे कंप्रेस करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन इट्स हाइट विल बी रिड्यूसेस, यस आर नो, एंड अलोंग विद दिस जो यहाँ पे हाइट में रिड्यूस हो रहा है, और ये आप देख रहे हो जो आइडलर रोल और मेन रोल है ये इस डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फीड रोल्स, इज इट क्लियर। तो इस डायरेक्शन में इसे हम फीड करेंगे, तो ऑब्वियसली जब दोस्तों इसे कंप्रेस करोगे लाइक दिस और इस डायरेक्शन में फीड करोगे तो इसका डायमेंशन इंक्रीज, इसका डायमीटर इंक्रीज होता चला जाएगा, थिकनेस रिड्यूस होती चली जाएगी, तो दोस्तों ऑब्वियसली फिर यहाँ पे डिस्क से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक रिंग शेप बन जाएगा, ये सानो, तो इस प्रोसेस को कह देते हैं हम रिंग रोलिंग प्रोसेस, इज इट क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज रिंग रोलिंग प्रोसेस। And with the help of this ring rolling process the bearing cages
इनर एंड आउटर रेस जो होते हैं बेरिंग्स में, बॉल बेरिंग्स में या रोलर बेरिंग्स में, उनकी रेसेस बनाई जाती हैं। और साथ में दोस्तों जो स्लीव बेरिंग है उनकी स्लीव्स बना सकते हैं हम, करेक्ट है। जनरल बेरिंग्स की जनरल बना सकते हैं, करेक्ट। सॉरी, बेरिंग्स बना सकते हैं, जो उसकी स्लीव है वो बना सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और अगर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट का ब्लैंक चाहिए, सर्कुलर ब्लैंक्स, जिसमें फर्दर आपको थ्रेड्स कट करने हो फॉर बिगर साइज एप्लीकेशन, करेक्ट है, तो अगेन उसको भी हम इस रिंग रोलिंग प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो ये थी कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, करेक्ट है। एनालिसिस ऑफ फ्लैट रोलिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स दोस्तों यहीं से पूछे जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी अगर हम देखें तो दिस इज रोलर, यस आर नो, दिस इज रोलर, correct, and its diameter is capital D और its radius is capital R, करेक्ट है। इसका डायमीटर कैपिटल डी या रेडियस कैपिटल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नाउ यू कैन से दिस इज द सेंटर अबाउट विच दिस रोल्स कैन रोटेट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O1, एंड सिमिलरली दिस इज अनदर रोल्स, बॉटम रोल्स, जो कि O2 होगा। इज इट क्लियर? एंड हियर द रोटेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आर नो? यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इज इट क्लियर? कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन होगा दोस्तों, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था दोस्तों, यू कैन सी दिस इज इनिशियल हाइट ऑफ द प्लेट एंड दिस इज इनिशियल विड्थ, correct, and similarly you can see here this is final width and this is final height, is it clear? And similarly you can see here this is initial area, जिसे हम कहेंगे a naught, and this is final cross section area, this is AF, is it clear? करेक्ट है दोस्तों। नाउ यू कैन से दिस इज V1 वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल बिफोर एंटरिंग इनटू द रोल्स। यहाँ पे देखो इस पॉइंट में एंटर होने से पहले मटेरियल की वेलोसिटी क्या थी, V1, करेक्ट। एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट, और इस एग्जिट पॉइंट से जो वेलोसिटी यहां से जो मटेरियल मूव कर रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से। तो V2 याद रखना, V2 इज एग्जिट वेलोसिटी एंड V1 इज इनलेट वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल। एंड यू कैन सी हियर VR इज नथिंग बट इट इज अ रोल सरकमफ्रेंशियल वेलोसिटी, ये सानो, इस रोलर का सरकमफ्रेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आप कह सकते हो। अगर सपोज मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहाँ पे दोस्तों ये VR वेलोसिटी मिलेगा, ये सानो। एंड थ्रू आउट द रोल्स, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो आपको सेम वेलोसिटी मिलेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रोल्स, ये सानो। ये सरफेस वेलोसिटी भी इसे हम कह सकते हैं, सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोल्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों जो कि आने वाले एनालिसिस में हम इन्हें यूज करने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, रोल्स वेलोसिटी, हाइट, विड्थ, ये सानो। एंड सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे देखो ए से बी, यहाँ पे देखो मैंने एक मार्क कर रखा है, रेड पॉइंट और एक येलो पॉइंट, इनके बीच का ये जो कर्वेचर आपको मिल रहा है, दिस इज अ कॉन्टेक्ट रीजन। ये क्या है, दिस इज द कॉन्टेक्ट रीजन बिटवीन रोल्स एंड सीट, करेक्ट है, जहां पे मेटल कंप्रेस हो रहा है। और इसी ए बी को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, तो आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज, अगर सपोज इसे मैं सी कह दूं, तो AC इज नथिंग बट दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ। और इसी प्रोजेक्टेड लेंथ यहाँ पे दोस्तों क्या कहते हैं हम, दिस इज आर्क। ये जो है AC इज आर्क, या यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। AC इज आर्क ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे देखो AC क्या है, दिस इज आर्क ऑफ कांटेक्ट, एंड AB जो है दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ है, इसी आर्क ऑफ कांटेक्ट का, जहां पे रोलर और प्लेट के बीच में कांटेक्ट है, इसी को प्रोजेक्ट करके हमने AB यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे यही कैलकुलेट करना है, एंड दिस प्रोजेक्टेड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय LP। एंड नाउ यू कैन सी हियर इन दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, क्या दोस्तों बोलेंगे इसे हम, इसे कहते हैं ड्राफ्ट एंगल, यस और नो। दिस इज कॉल्ड एज, इधर इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट एंगल और एंगल ऑफ बाइट, या इसे बाइट एंगल भी कहते हैं, करेक्ट है। तो अल्फा इज ए बाइट एंगल, LP इज ए प्रोजेक्टेड लेंथ, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फ्लैट रोलिंग, हियर वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ बाइट along with
प्रोजेक्टेड लेंथ देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वंस अगेन फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर्कल जो कि रोलर्स को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, और सिर्फ एक ही यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा, करेक्ट है। सेंटर के अबाउट ये हमेशा सिमेट्रिक होगा दोस्तों, तो दोनों साइड मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है। इज इट क्लियर? दिस इज द सीट, करेक्ट, and you just see here this is center line, this is center line, correct। इस सेंटर के अबाउट दोनों साइड ये सिमेट्रिक होगा दोस्तों, यस आर नो? then you can see here this height is nothing but this is h naught by 2, yes or no? And this height is hf by 2, yes or no? करेक्ट। एंड दिस इज सेंटर, यहां से देखो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, somewhere here this is center, is it clear? O1, and now you can see here दिस इज डेल्टा एच बाई टू। और देखो कैसे आएगा, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ फिर से, वंस अगेन, नो इशू। करेक्ट, चलो लगभग इक्वल डायमीटर का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ यू कैन सी, ओके। तो यहाँ पे फिर से आप देखो, दिस इज सेंटर, ओके। तो यहाँ पे दोनों सर्कल मैंने दोनों यहाँ पे रोलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, this one is initial height, is it clear? This one is initial height h naught, and this is final height, that is hf, करेक्ट। तो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है, रिडक्शन इन हाइट, यस आर नो? तो देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा एच इज नथिंग बट दिस इज रिडक्शन इन हाइट, रिडक्शन इन हाइट। और इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इट इज सिंपली रिटन एज एच नॉट माइनस एच एफ, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड ये सिमेट्रिकल रिडक्शन हो रहा है, दिस इज डेल्टा एच बाई टू एंड दिस इज डेल्टा एच बाई टू, और दोनों का सम क्या आएगा दोस्तों? टोटल डेल्टा एच। तो यहाँ पे आई थिंक डेल्टा एच, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेल्टा एच बाई टू कैसे हुआ, यस आर नो? बोथ साइड वी कैन गेट हाफ ऑफ रिडक्शन, यस आर नो? क्योंकि ये एंटायर रिडक्शन सिमेट्रिकल होगा अबाउट दिस horizontal line, yes or no? तो ये आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज रेडियस ऑफ द रोल्स, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये हाइट क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल आर माइनस डेल्टा एच बाई टू। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ द रोल माइनस डेल्टा एच बाई टू, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज अल्फा। और यहाँ पे देखो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट, तो यहाँ पे ए बी की लेंथ जो होगी दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड लेंथ। तो मुझे यहाँ पे अल्फा निकालना है और प्रोजेक्टेड लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि रिडक्शन इन हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे टर्म पूछा जाता है, परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट, परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट।
और सिमिलरली परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट देखें दोस्तों, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एच नॉट माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच नॉट इंटू 100। ये सानो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट। और सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों ए नॉट माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू 100। करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आप परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हैं एंगल ऑफ बाइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल को अगर मैं ड्रॉ करूं देन इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। दिस इज ए, this is B, and this is O1, and this angle is alpha, this is R, and this is R minus delta H by 2। yes or no? करेक्ट। तो सिंपल से यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, बेस अपॉन हाइट दैट इज R माइनस डेल्टा H बाई 2, दिस इज बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज R। और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r। तो इस तरीके से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा इज नथिंग बट दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। इज इट क्लियर? इस तरीके से दोस्तों आप एंगल ऑफ बाइट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या? एनीवन? कैसे हमने इसे लिखा ये समझ में आ गया दोस्तों? या किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो फटाफट। एनीवन? आयुष, कुशल, विशाल, एनीवन? ये समझ में आ गया दोस्तों कैसे हमें फाइंड आउट करना है? अब मुझे इस एलपी को फाइंड आउट करना है। अब देखो इस एलपी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एलपी याद रखना दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ दिस आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पे सी है, ए सी है। इसको प्रोजेक्ट किया तो ए बी मिला। और कैसे मिलेगा? तो अगेन इसी सेम ट्रायंगल से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Correct. Once again, here I am going to draw a triangle like this. इस ट्रायंगल को याद रखना, फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली आप डिराइव कर लोगे एनी टाइम, कभी भी नीड होगी तो। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री अप्लाई करनी है। दिस इज O1, दिस इज A, एंड दिस इज B। करेक्ट। एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड लेंथ, एंड दिस इज रेडियस R, एंड दिस इज R माइनस डेल्टा H बाई 2। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है LP, दैट इज प्रोजेक्टेड लेंथ। और गेट एग्जाम में आप इनके क्वेश्चंस देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। करेक्ट है। तो दोस्तों कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यू जस्ट सी। देखो सिंपली यू कैन सी हियर, इफ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम देन एलपी स्क्वायर कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस दिस बेस आर माइनस डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या दोस्तों इस टर्म को? यस आर नो? आई थिंक इतना इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा ये कैसे आगे आर स्क्वायर माइनस आर माइनस डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो आप स्क्वायर को, तो क्या ब्रैकेट को, तो क्या आएगा देखो आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज आर स्क्वायर माइनस, करेक्ट, इन ब्रैकेट चलो लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा एच बाई 2। कुछ इस तरीके से टर्म आएगा दोस्तों। इस ब्रैकेट को आप ब्रेक करो, क्या आएगा देखो आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होएगा 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा एच बाई 2। करेक्ट है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, this 2 is cancelled out with this. Now you just see here we have a multiple of r into delta h, and here we have square of delta h, वो भी उसका हाफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलने वाली है दैट इज डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर एज जीरो। इज इट क्लियर?
सिंपली मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा एच बाई टू, डेल्टा delta h by 2 is very low as compared to r times of delta h. That's why it will be considered as zero. तो फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों, दिस इज एल पी स्क्वायर. फाइनली this LP can be written as square root of R delta H. R delta H. Is it clear? इस तरीके से मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं. यस आर नो? अब आप मुझे बताओ इस प्रोजेक्टेड लेंथ को फाइंड आउट करने में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? तो आसान तरीका है. यस आर नो? with the help of simple geometry you just find out the projected length. Yes or no? करेक्ट. चलिए अब यहाँ पे कुछ एक दो प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करते हैं फिर यहीं पे क्लास को एंड करेंगे दोस्तों. गेट 2007 का क्वेश्चन है. The thickness of the metallic sheet is reduced from initial value of 16 millimeter to final value of 10. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ initial height that is h naught, here we have 16 millimeter and the final height that is 10 millimeter. इन वन सिंगल पास रोलिंग में हम इसे कर रहे हैं विथ अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल रोल्स ईच ऑफ डायमीटर 400 मिलीमीटर. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डायमीटर और रेडियस में कंफ्यूज मत होना. कई बार ये रेडियस के फॉर्म में देगा, कई बार यहाँ पे डायमीटर के फॉर्म में देगा. तो डायमीटर इक्वल टू 400 मिलीमीटर है तो रेडियस ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 200 मिलीमीटर. यस आर नो? तो हाथों हाथ यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एंगल ऑफ बाइट इन डिग्री. एंगल ऑफ बाइट इन डिग्री. तो ये क्या है दोस्तों? तो सिंपली एज वी नो दैट अल्फा इज नथिंग बट दिस इज कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स आपको फाइंड आउट करना अल्फा की वैल्यू ओ भी इन डिग्री. करेक्ट. ये याद रखना क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपको रेडियन में मिलता है. तो यहाँ पे कॉस इनवर्स से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, बट जनरली हमें रेडियन में वैल्यूज मिलती है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. करेक्ट. बट यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिग्री मिलेगा. तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r. ये रिलेशन है. यस आर नो? करेक्ट है. और यहाँ पे डिग्री लिखना था, ये छूट गया डिग्री. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट पता है तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा एच ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एच नॉट माइनस एच एफ दैट इज 16 माइनस 10. यहाँ पे 6 मिलीमीटर आएगा डेल्टा एच और आर हमने ऑलरेडी यहाँ पे 200 लिख दिया है. तो अल्फा इज इक्वल टू देखो क्या आएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस डेल्टा एच इज नथिंग बट दिस इज 6 मिलीमीटर इंटू 2 इंटू 400. सॉरी 2 इंटू 200 नॉट 400. यस आर नो? तो कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी दोस्तों. बोलो. अब आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? हेलो एनीवन? Here we can get alpha is equal to 9.936 डिग्री. आई थिंक सबका यही आंसर आ रहा है क्या? बोलो. तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से आप दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ना. दिस इज नॉट अ बिग डील. इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और इसके साथ फिर इस सेशन को बाइंड अप करेंगे. यहाँ पे a strip with a cross section of 150 millimeter by 4.5 millimeter is being rolled with 20% reduction of area using 450 millimeter square. देखो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया. परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इज गिवन दैट इज 20%. एंड जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन होगा. दिस इज 150 मिलीमीटर एंड दिस इज 4.5 मिलीमीटर. करेक्ट है दोस्तों? ये जो 4.5 है दिस इज एच नॉट और यहाँ पे 150 मिलीमीटर है, दिस इज डब्ल्यू नॉट. याद रखना जब भी इस तरीके का डायमेंशन दिया हो, टू डायमेंशन दिए हो तो ये विड्थ इनटू हाइट होते हैं. अगर 3 होता तो लेंथ विड्थ इनटू हाइट होता है. करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हो, रिडक्शन ऑफ द एरिया यूजिंग 450 मिलीमीटर डायमीटर रोल्स. तो रोलर का जो डायमीटर है दिस इज 450 मिलीमीटर है. ये सानो द एंगल सबटेंडेड बाय द डिफॉर्मेशन जोन एट द रोल सेंटर इज इन रेडियन पता करना इस बार.
ये याद रखना। मतलब यहाँ पे आपको अगेन अल्फा फाइंड आउट करना है, बट किस टर्म में? रेडियन में। ये याद रखना है आपको, रेडियन में आंसर देना है। करेक्ट। तो सिंपल सा देखो, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया दैट इज 20% यहाँ पे लिखा है। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों? इट इज सिंपली रिटन एज ए नॉट माइनस ए एफ बाई ए नॉट, और सिंपली वी कैन से 1 माइनस ए एफ बाई ए नॉट। तो यहां से क्या पता चल गया कि जो फाइनल एरिया है दिस इज नथिंग बट, इसमें वैल्यू पुट करके बता दूं, 20% दैट इज 0.2 इक्वल टू 1 माइनस ए नॉट बाई ए एफ। तो ए नॉट, सॉरी ए एफ बाई ए नॉट, मैंने ये गलत लिख दिया। दिस इज ए एफ बाई ए नॉट। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यू कैन सी हियर ए एफ बाई ए नॉट, ए एफ बाई ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। यस आर नो? ये क्या आ गया? 0.8। तो फाइनल एरिया जो है यहाँ पे दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ ए नॉट। और ए एफ अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? डब्ल्यू एफ इंटू एच एफ, दिस इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू नॉट इंटू एच नॉट। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। तो यहाँ से एच एफ क्या मिल गया आपको? 0.8 टाइम्स ऑफ एच नॉट। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप एच एफ फाइंड आउट कर लोगे। तो एच एफ इज इक्वल टू 0.8 इंटू एच नॉट है 4.5। यस आर नो? ये आ जाएगा दोस्तों 3.6 मिलीमीटर। तो जैसे एच एफ मिल गया तो डेल्टा एच क्या आएगा? देखो 1 माइनस, सॉरी एच नॉट माइनस एच एफ। यहाँ पे एच नॉट क्या है? 4.5 माइनस 3.6, एंड देयरफॉर डेल्टा एच कैन बी रिटन एज 4.5 माइनस दिस, तो 0.9 आएगा आंसर। यस आर नो? 0.9। इज इट क्लियर? ये डेल्टा एच मिल गया। तो अब दोस्तों आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r, ये रिलेशन है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा? 1 माइनस डेल्टा एच क्या है दोस्तों? 0.9 डिवाइडेड बाई 2r। 2r की जगह मैं डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, 450। यस आर नो? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिग्री में जो आ रही दोस्तों, अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 3.624 डिग्री, बट यहाँ पे मुझे रेडियन में चाहिए, तो मैं इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा रेडियन में। यस आर नो? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है अल्फा इज इक्वल टू 0.063 रेडियन। यस आर नो? दिस इज द करेक्ट वैल्यू। और गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए आंसर? ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, इसे आप खुद ट्राई कर लेना दोस्तों। करेक्ट है, इसे आप खुद ट्राई कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन अ सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस यूजिंग 410 मिलीमीटर डायमीटर स्टील रोल्स a strip of width 140 millimeter and thickness 8 millimeter undergoes 10% reduction of thickness then the angle of bite in radians। चलो सॉल्व ही कर देता हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ पे वन स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे देखो एच एफ जो आएगा 10% रिडक्शन है, तो बचा कितना? 10% रिड्यूस हो गया, तो बचा 90%। तो 0.9 टाइम्स ऑफ एच नॉट लिख सकता हूँ। यस आर नो? तो यहाँ से एच एफ की वैल्यू मिल गई 0.9 टाइम्स, इनिशियल हाइट इसकी है 8 मिलीमीटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 7.2 मिलीमीटर। यस आर नो? तो सिंपल से दोस्तों यहाँ पे देखो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8 माइनस 7.2, और ये आ गया दोस्तों कितना? 0.8 मिलीमीटर। यस आर नो? ये डेल्टा एच है। अब अल्फा निकालना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे दोस्तों, कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r। तो डेल्टा एच है 0.8 डिवाइडेड बाई 2r, 2 इंटू आर, आर इज गिवन दैट इज रेडियस क्या है 4, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, ये यहाँ पे जो दिया है डायमीटर दिया है, तो इंस्टेड ऑफ 2r यहाँ पे मैं डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यस आर नो? बस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर मत कर देना, यही गलती होगी यहाँ पे।
करेक्ट है। और जैसे 2 टाइम्स आपने डायमीटर किया तो कोई ना कोई आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा इस गलती वाला। करेक्ट है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोग। करेक्ट, देखो क्या आंसर आता है, 0.8 डिवाइडेड बाई 410। यहाँ पे वैल्यू आ रही दोस्तों, अल्फा इज इक्वल टू 3.579 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे दोस्तों सिंपल से अल्फा मिलेगा, देखो यहाँ पे 0.0624 ये वैल्यू आ रहा है। और ये किस में आएगा दोस्तों, दिस इज रेडियन। तो अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखो बहुत, यहाँ पे 0.006 दिया हुआ है, 031 दिया है, और यहाँ पे 062, दिस वन इज करेक्ट आंसर। करेक्ट, तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। करेक्ट है, तो इसके नेक्स्ट एनालिसिस वाले पोर्शन को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। करेक्ट है, अब आप मुझे बता सकते हो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, प्रीवियस लेक्चर का भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी, और इस लेक्चर का आपको कुछ डाउट है देन यू कैन आल्सो आस्क मी। एनीवन, प्रतीक, विशाल, प्रतीक, कुशल, एनीवन, आयुष, अभिनव, किसी को कुछ डाउट है क्या दोस्तों, बता दो फटाफट, फिर इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ओके चलिए ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। उससे पहले यहाँ पे आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना मत भूलो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको लेक्चर कैसे लगा। करेक्ट है, और फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।